हमारे देश में लाखों तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग रंग, जाति या अलग अलग भाषा बोलते हैं। ज्यादातर देश के लोग सही तरीके से रहते हैं और अपना काम आराम से करते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इरादे नेक नहीं होते और बाकी लोगों को अपना काम सही ढंग से नहीं करने देते और उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में हमारे देश की पुलिस या आर्मी सतर्क हो जाती है और इन बुरे लोगों को ढूंढकर इनसे छुटकारा पाने के लिए इन्हें जेल में डालकर बंद कर देती है, ताकि सुख शांति बनी रहे और सारे लोग चैन से रह सके और अपना काम सही तरीके से करते रहें। हमारा शरीर भी हमारे देश की तरह ही है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं जो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सारे सेल्स अपना काम सही से करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ सेल्स खराब हो जाते हैं और वो सेल्स खुद भी परेशान रहते हैं और बाकी हेल्दी सेल्स को भी सही से जीने नहीं देते। ऐसे में हमारे अंदर क्या मौजूद इम्यून सिस्टम, जो हमारे अंदर की पुलिस है, वो एक्टिव हो जाती है और पूरी सिचुएशन को अपने काबू में ले लेती है, चाहे डिफेक्टिव सेल्स हो, पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया या म्यूटेटेड सेल्स, ताकि बाकी हेल्दी सेल्स अपना काम सही से कर सकें और शांति बनी रहे। यही है हमारा इम्यून सिस्टम। आप ये सोचो, अगर हमारे देश में पुलिस नहीं होती तो क्या सुख शांति बनी रहती? इस देश की पुलिस की तरह भी हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट जब कैंसर की बात आती है तो ऑलमोस्ट हर कैंसर बनाने वाले शरीर में भी पेशेंट के इम्यून सिस्टम ने उसके कैंसर को मिस कर दिया, जिसकी वजह से वो कैंसर सेल्स बढ़ना शुरू हो गए। और यही बात इन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के इस वीडियो ने भी बताई है कि कैंसर भी कुछ नहीं, बस एक खराब इम्यून सिस्टम की ही बीमारी है। Antibiotics, right? Antibiotics can't cure anything. They can bring down the number, right, the cell count, such that then your immune system can take over, but it's your immune system that does the curing. We have to understand that the thing that cures cancer is your immune system. So cancer, first and foremost, is a problem with the immune system. You cannot have cancer if you have an intact immune system. One of the things that I do is I begin to unimpede their immune system. Because every cancer patient, their immune system has missed the cancer. So it has missed it. And so you have to unimpede their immune system, and then you have to stimulate it back into action. No doctor has ever healed anyone of anything in the history of the world. The human immune system heals. And that's the only thing that heals. With all our patients, whether it's cancer or any kind of chronic disease, it's always about lowering inflammation and improving and increasing immune system response. Because your immune system has to fight, fix, and repair against anything. It'd be logical to argue that in an intact immune system, there would be no room for cancer. Many people, and I'm one of them, see cancer as basically a disease of the immune system. Especially in our modern world, I don't think there's any way you're going to stop cells firing off and going wrong and turning into rogue cells. There's just too many toxins. But a good immune system will pick them up very quickly and eliminate them. So, in a very strong sense, cancer is a disease of the immune system. So you want to do everything in your power to help the immune system. That means, the right kind of nutrients that will help it. It also means removing the stressors that will stop it working. See, what most people don't realize is all of us have cancer cells. We're all developing them every single day. Typically, our immune system would hunt them down and regulate them. However, when we've got immune deficiencies, which is another problem with sugar, it weakens our body's innate immune system. And so when that happens, now these cancer cells will start to grow without being checked, being kept in check by our body's natural immune response. Another thing that sugar does, and most people don't know about, is the average amount of sugar in one can of, let's say, Coca-Cola. It's probably 9 or 10 teaspoons of sugar in there. That's enough sugar to effectively shut down a minimum of 50% of your immune system for 4 hours. One 12-ounce Coke. If you're a cancer patient, can you afford that? Since the immune system is the only thing that can heal you, we simply can't afford that. To overcome cancer, to stop it before it begins, or to reverse it once you've contracted it, I'm pretty much convinced the immune system is going to have to be a major player. Your immune system is really the only thing that stands between you and all those things in you, on you, and around you trying to get you all the time. The immune system is powerful. It's the first line of defense that we have against bacteria, viruses, pathogens, and cancer cells.
And what a lot of people don't realize is that the immune system is powerful. It has over hundreds of functions in the body, and there are billions of immune cells at your disposal every day. Without nutrition, you're fighting with no weapons. Without your immune system, you're fighting with no army. तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारे अंदर की पुलिस का दुश्मनों को रोकने में कितना बड़ा रोल है। अगर आप ध्यान से सोचें कि कैंसर क्या है, तो आपको ये एहसास होगा कि कैंसर कुछ नहीं, बस एक खराब या डिफेक्टिव सेल्स का ही तो ढेर है, जो शरीर ने इकट्ठा कर लिया एक जगह और मास बना दिया, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन है तो वो भी शरीर के सेल्स ही जो खराब हो गए, और क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, ये खराब सेल्स हम पर हावी हो गए। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर की पुलिस या इम्यून सिस्टम को अपनी ताकत वापस मिलने लगती है, वहीं पर यही कैंसर सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। इससे एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि कैंसर सेल्स को खत्म सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ही कर सकता है। इसी कारण से जब कोई कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उस ट्रीटमेंट के बाद कैंसर के वापस आने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ कैंसर सेल्स को ही नहीं मारता, बल्कि वो आपके हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, खास तौर पर इम्यून सेल्स को। इस बारे में एक 2015 की स्टडी भी बात करती है। इस स्टडी में भी यही बताया गया है कि कैसे कीमोथेरेपी ड्रग्स की वजह से इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से ट्यूमर की ग्रोथ तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। इससे शरीर को एक और जगह नुकसान होता है, वो ये कि जब ये एग्रेसिव टेक्निक्स यूज होती हैं, तो शरीर को अपनी वैल्यूएबल एनर्जी, जिसकी ज़रूरत उसे कैंसर सेल्स को मारने के लिए चाहिए होती है, वो उसे इन ट्रीटमेंट्स के डैमेज से रिकवर करने के लिए यूज़ करनी पड़ती है, जिस वजह से आपका इम्यून सिस्टम को और काम करना पड़ता है और सही से अपनी पूरी पावर से कैंसर सेल से नहीं लड़ पाता। ऑलमोस्ट सभी कीमोथेरेपी ड्रग्स आपके इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट कितना गहरा है, वो इस बात पे फर्क पड़ता है कि आप कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, कितनी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ ले रहे हैं, कितनी जल्दी उस मेडिसिन को दिया जा रहा है, आपकी एज क्या है और आपकी ओवरऑल हेल्थ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि इन ट्रीटमेंट्स के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम कम से कम डैमेज हो और उसकी रिकवरी फास्ट हो, क्योंकि कैंसर सेल्स को ख़त्म सिर्फ और सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम ही कर सकता है। इनफैक्ट जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो कैंसर सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये हम उन लोगों में भी देख सकते हैं जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया। वो ऐसे कि जब कोई इंसान किडनी, लिवर या किसी भी दूसरे ऑर्गन को अपने शरीर में ट्रांसप्लांट कराता है, तो उस इंसान का शरीर उस ऑर्गन को फॉरेन यानी बाहर का समझता है, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट करने लगता है। इसीलिए शरीर में उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करवाने के लिए पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। इन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का काम होता है कि वो इम्यून सिस्टम की पावर को कम कर दे, ताकि वो इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। और जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, उनकी ये दवाई सारी जिंदगी ही चलती है। जब ऐसे पेशेंट्स लंबे समय तक इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स वाले रिजीम पर होते हैं, तब उनके शरीर में कैंसर सेल्स बढ़े हुए देखे गए। ये स्टडीज़ ने भी प्रूव किया है। एक 2011 की स्टडी 1987 से 2008 के बीच हुए 1,76,000 सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के डेटा को रिव्यू करती है। उसमें उन रिसर्चर्स का ये कहना था कि कैंसर सेल्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में 2 गुना ज़्यादा देखे गए हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया होता। इनफैक्ट एक 2005 की स्टडी के अकॉर्डिंग इन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की वजह से बॉडी में कुछ कैंसर होने का रिस्क 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। इससे भी यही साबित होता है कि जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो वो कैसे कैंसर सेल्स को शरीर में तेजी से बढ़ा देता है। ऐसे ही ये बात हम उन लोगों में भी देखी जा सकती है जो लोग बूढ़े हो जाते हैं। मतलब जब एक इंसान की उम्र बढ़ने लगती है, तब उसके साथ उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से कैंसर के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इम्यूनोसेनेसेंस भी कहते हैं, जो ये बात बताता है कि बढ़ती उम्र के साथ और इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से बूढ़े लोगों में कैंसर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक सबसे प्राइमरी कारण हमारे इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने का वो ये है कि वक्त के साथ हमारा थाइमस ग्लैंड, जो कि एक इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, वो सिकुड़ने लगता है। इस थाइमस ग्लैंड का काम होता है कि वो हमारे टी सेल्स या इम्यून सेल्स को बनाना, जिसका काम होता है बॉडी में डिसफंक्शनल सेल्स या फॉरेन एजेंट्स को मार देना। और क्योंकि ये बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कैंसर की ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये रिसर्च ने भी साबित किया है। एक 2018 की स्टडी के अकॉर्डिंग रिसर्चर्स ने ये देखा कि उम्र के बढ़ने की वजह से इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना एक बड़ा कारण है कैंसर केसेस के बढ़ने का। और साथ ही ये भी देखा गया है कि ये थाइमस ग्लैंड महिलाओं से ज़्यादा
पुरुषों में तेजी से कम होता है, जो शायद ये एक्सप्लेन करता है कि पुरुषों में कैंसर के केसेस ज़्यादा क्यों बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जानकर हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि हमको अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप कोई भी थेरेपी कराओ, लेकिन उन थेरेपी से आपका इम्यून सिस्टम डैमेज नहीं होना चाहिए, या एक ऐसा प्लान ज़रूर होना चाहिए जिससे उस इम्यून सिस्टम की ताकत वापस रिस्टोर की जा सकती है, क्योंकि एक कमज़ोर इम्यून सिस्टम ही शरीर में कैंसर सेल्स के बढ़ने की वजह बन सकती है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम की पावर वापस बढ़ जाती है, तो शरीर में कितना भी बड़ा ट्यूमर क्यों ना हो, वो कैंसर सेल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट अब साइंस भी इसे पहचानती है, ये बात कि इम्यून सिस्टम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स को ठीक कर सकती है। एक ऐसे नए कैंसर ट्रीटमेंट की फील्ड का बेस है जिसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, जो हाल ही में ही आई है। इस थेरेपी में डॉक्टर्स ड्रग्स के जरिए हमारे इम्यून सिस्टम की ताकत को बढ़ा देते हैं, जिससे वो हमारे शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को आसानी से ढूंढ पाती है और उनको मारना शुरू कर देती है, जो वो पहले नहीं कर पा रही थी जब वो कमज़ोर थी। ये इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स कई तरह से काम करते हैं। या आमतौर पर वो दवाइयाँ होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्मार्ट बनाती है, ताकि डिफेक्टिव सेल्स जो इम्यून सेल्स से अभी तक बचकर भाग रहे थे वो वापस पकड़ में आ सकें। और दूसरा कि इन ड्रग्स के जरिए इम्यून सिस्टम की ताकत को बढ़ाया भी जा सकता है, ताकि वो कैंसर सेल्स को ख़त्म कर दे। मतलब आसान शब्दों में साइंस भी अच्छे से जानती है कि हमारे इम्यून सिस्टम में ही वो पावर है जो कैंसर सेल्स को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी इम्यूनिटी को इन एक्सपेंसिव ड्रग्स के बिना भी तो घर में रहकर बढ़ा सकते हैं। हजारों लोगों ने स्टेज 4 और स्टेज 3 वाले कैंसर को घर में रहकर ही, घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके ही ख़त्म कर दिया, अपने शरीर को समझकर और ये समझकर कि हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जिसको वापस बढ़ा देने पर शरीर खुद का खुद ही कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर देता है। कैंसर किसी दूसरे प्लेनेट से तो आया नहीं, ये आपके ही सेल्स हैं, ये आप हैं, आपका डीएनए, और इसे जब आपकी बॉडी ने ही क्रिएट किया है तो आपकी बॉडी ही इसका इलाज भी कर सकती है, और आपका शरीर भी ये जानता है। इनफैक्ट अगर आप सोचें तो आप ये पाएंगे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इन ट्रीटमेंट्स का सिर्फ इतना सा काम है कि ये शरीर में कैंसर सेल्स के बोझ को कम करती है, लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम को ठीक नहीं करती, और कैंसर सेल्स को ख़त्म सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम ही कर सकता है। इसीलिए आप चाहे थेरेपीज लें या आप चाहे थेरेपीज ना लें, आपका इम्यून सिस्टम दोनों ही केसेस में सक्षम है कैंसर सेल्स को मारने में और शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग को रिस्टोर करने में। इनफैक्ट आपके रिकवरी के चांसेस बढ़ ही जाएंगे अगर आप ऐसी थेरेपीज अवॉइड करेंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगी, क्योंकि कैंसर से जीतने के लिए आपका इम्यून सिस्टम का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने 20 ट्रिलियन सेल्स की काबिलियत पर भरोसा रखना होगा, जो एक ताकतवर इम्यून सिस्टम बनाती है। ये होने के लिए आपको अपने सेल्स को सही कंडीशंस देने होंगे। जब आप ऐसी चीज़ें करते रहेंगे जिससे आपके इम्यून सिस्टम पे कम से कम बोझ होगा, तब आपका इम्यून सिस्टम की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो कैंसर सेल्स को खुद का खुद ही मारना शुरू कर देगी और स्टेज 3 और स्टेज 4 वाले कैंसर तक को पिघला देगी। असली सवाल ये है कि घर रहकर हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपनी इम्यून सिस्टम की पावर को घर बैठे ही बढ़ा पाएँ, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मौजूद कैंसर सेल्स को मारना शुरू कर दे। घबराइए मत, आने वाले वीडियोस में उन सारी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे। इसीलिए ये आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा काम और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हूं शुभम अग्रवाल और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।